हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एंड इन टुडेज वीडियो वी स्टार्ट चैप्टर 10 सर्कल्स। इन दिस चैप्टर we discuss about some topics related to this chapter. An introduction. First we discuss what is the tangent, second secant, and the third one is chord, and fourth the difference between a chord and a secant. And in the last, the most important theorem of this chapter, that is theorem 10.1. Now student, first we discuss about tangents. What are the tangents? What are the tangents? Yes, student, we take here three cases of circles. Yes, in the first case we take a circle with center O and XY is a line segment. This one is XY. And in the second case we take a circle having center O and XY is a line which just touches the circle at a single point. And in the third case, here we take a circle and a line which intersect the circle at two different points. So these are the three positions we take here to clear the tangent. What is a tangent? So student, in first case आप देख रहे हैं कि यहां पे एक सर्कल है और एक लाइन सेगमेंट है. इज देयर अ पॉइंट कॉमन इन दिस टू? नो, वी हैव नो कॉमन पॉइंट. Between the line and circle. Here no common point in this part, and in second part we have only one common point. Between these, yes, in the third part we have two common points. Yes, student, when there is a common point in a circle and a line segment, that is known as tangent, and this point is known as point of contact. Point of contact. Point of contact वो पॉइंट होता है जहां पे आपका एक पॉइंट कॉमन हो. यस, P is the common point between this line XY and a circle having center O. तो यहां पे एक पॉइंट कॉमन आ गया हमारा, इसलिए हम इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. एंड दिस XY here, XY is a tangent to the circle with center O. तो इस केस में हम कहेंगे कि XY जो है वो एक टेंजेंट है जब कभी भी एक सर्कल और एक लाइन में एक पॉइंट कॉमन होता है. उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट. एंड इन द थर्ड केस, स्टूडेंट, वी हैव ए लाइन एंड ए सर्कल. हियर टू पॉइंट्स आर कॉमन. व्हेन अ लाइन, अब देखिए यहां पे व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट the circle at 2 points, that is known as secant. So this here XY is a secant. So this is the definition of tangent.
that in a circle and a line segment if we have a common point that is known as tangent. देखिए स्टूडेंट, अब इनकी डेफिनेशंस ये आपको क्लियर हो गए कि एक सर्कल में और एक लाइन सेगमेंट में अगर एक पॉइंट कॉमन आता है तो उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट और उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर दो पॉइंट कॉमन है तो उसको हम बोलेंगे सीकेंट। यस, नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ दीज टू पॉइंट्स, tangents and secants. Yes, tangent और secant की definition बताएंगे हम आपको. So here the definition of the tangent is the line which intersect the circle. At a single point वो लाइन जब सर्कल को एक ही पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एंड दैट इज नोन एज टेंजेंट। एक्स वाई एंड हियर पी एंड दिस इज द सेंटर, सो पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। Now, xy is a tangent to the circle, and the tangent word comes from the Latin word. Tangents is a word that means to touch. Latin word से हमने, yes, Latin word tangere. It comes from Latin word tangere, which means to touch. So when a line just touches the circle at a single point, that is known as tangent. So student, now we discuss about the secant. The line which intersect the circle at two points. Yes, कोई भी अगर हम सर्कल लेते हैं और उस सर्कल को एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंट पे काटती है, yes, it intersect this line xy intersect the circle at two distinct points, so that is known as secant. The line which intersect the circle at two points, that is known as secant. Now student, chord. आपने chord के बारे में पढ़ा है पहले? What is the chord? Chord की definition क्या होती है? A line segment whose end points lie on the circle. वो line segment जिसके end points circle के ऊपर lie करते हैं. Yes, this one is the definition of the chord. Here is a circle whose center is O and AB is known as chord. The line segment whose end points lie on the circle. जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं उसको हम कॉर्ड बोलेंगे। तो यहां पे स्टूडेंट एक डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉर्ड एंड सीकेंट? यहां से आपने क्या देखा कि देखिए सीकेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल whose end points, it is not compulsory that whose end points lie on the circle, but these are the intersecting points. Yes, वो intersecting points हैं और xy is a line, यहां पे एक लाइन लिया है हमने और यहां जो कॉर्ड है वो एक लाइन सेगमेंट है। इसके बाद इसके बाहर नहीं जाएगी, इसके एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। एंड लाइन आप देखें, वी कैन एक्सटेंड द लाइन इनफाइनाइटली, बहुत कहीं तक हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉर्ड एंड लाइन। नाउ स्टूडेंट, वी स्टार्ट द थ्योरम 6.10.1.
Yes, friend, now start the theorem, proof of theorem 10.1. First, we clear the statement of this theorem. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. बहुत इजी है, छोटी सी थ्योरम है. देखिए स्टूडेंट, एक सर्कल है. पहले फिगर आप बनाइए इसकी, जैसा आपको क्वेश्चन में कहा गया है. फर्स्ट वी ड्रॉ ए सर्कल. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, किसी पॉइंट पे टेंजेंट है. यस, दिस वन इज द पी पॉइंट विच इज ऑन द सर्कल एंड थ्रू पी xy is a tangent. Yes, the tangent at any point of a circle P point में से perpendicular to the radius through the point of contact. अगर कहता है रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर हो गए, हमें प्रूव करना है. Yes, this one is the radius and xy is a tangent through point of contact P. So here it is given to us that xy is a tangent. Yes, यहां पे आपको दिया गया है कि xy एक टेंजेंट है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P. xy is a tangent through point of contact P to the circle with center O. देखिए xy एक टेंजेंट है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P एंड किसके ऊपर है? एक सर्कल है जिसका सेंटर O है. नाउ टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट OP is perpendicular to xy. हमें OP को xy के ऊपर परपेंडिकुलर प्रूव करना है. नाउ प्रूफ. Here we take the proof of this theorem. देखिए स्टूडेंट, इसके ऊपर हम क्या करेंगे? कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं xy के ऊपर अदर देन P. P के अलावा कितने भी पॉइंट्स आप इसके ऊपर लें. लेट A, B, C. There are so we can take so many points on xy other than P. Let we take A, B and C on tangent xy. यस, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि हम कोई भी पॉइंट्स ले लेते हैं अदर देन P. इसके ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लेंगे. अब आप देखेंगे स्टूडेंट, देखिए मैं आपको ले रहा हूं P पॉइंट जो है वो कॉमन है. P इज ए कॉमन पॉइंट विच लाई ऑन द सर्कल. P is a point lie on the circle. Therefore, OP is radius of circle. And स्टूडेंट देखिए, P सर्कल के ऊपर भी लाई कर रहा है और लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, बट इसके अलावा कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है इनमें. यानी ओनली P पॉइंट कॉमन है. इसका मतलब P सर्कल पे लाई कर रहा है और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल से बाहर लाई कर रहे हैं. देख रहे हैं आप, A लाई आउटसाइड द सर्कल. अब ये रेडियस से बड़ा होगा. देखिए सर्कल के ऊपर होगा तो ही रेडियस के बराबर होगा. इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन. देयरफॉर OA is greater than OP. Similarly, point B lie outside the circle.
इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो बी पॉइंट है, यस स्टूडेंट, बी पॉइंट को देखिए आप, ये भी सर्कल के बाहर है और सर्कल के बाहर होगा तो रेडियस से ज्यादा होगा. सो इट इज therefore OB is greater than OP. कितने भी पॉइंट्स लीजिए स्टूडेंट, ऐसे यहां अगर OC को मिला देते हैं, so OC is also greater than OP. From all these equations, we observe that OP is the shortest distance from center O. From one end to, we observe that OP is shortest distance. Shortest distance from center O. O center से, yes, this one is the shortest distance. और shortest distance जो भी होगा, that is always perpendicular. Hence, OP is perpendicular to XY. तो स्टूडेंट देखिए, हमें बस कुछ नहीं दिखाना है इस थ्योरम में, हमें ये प्रूव करना है कि O से P तक का डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट है. ये सबसे छोटा डिस्टेंस है O से XY के ऊपर जो लिए गए हैं. When we take many points on XY, here only P is common point, therefore OP is the radius. P is a point lie on the circle, therefore OP is the radius of the circle, and all the points lie, other points lie on the tangent. These are outside the circle. सर्कल के बाहर होंगे, अगर सर्कल के बाहर होंगे तो वो रेडियस से बड़ा होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो वो रेडियस होगा. इसके बाहर लेंगे हम, सो दिस वन इज ग्रेटर देन OP. OA is greater than OP. Similarly, OB is greater than OP. From equation 1 and 2, we observe that OP is the shortest distance from center O. OP is the shortest distance. ठीक है, OP is the shortest distance from center O to tangent XY. Hence, we can say that OP is perpendicular to XY. So this one is the theorem. Now student, we start exercise 10.1. बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बेसिक्स पे बेस्ड है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन बेसिक्स. तो जो हमने डिस्कस किया अभी उसी पे बेस्ड है. इंट्रोडक्शन में जो हमने डिस्कशन किया है उसी पे बेस्ड कुछ पॉइंट्स हैं. और इन द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? तो उसमें एक सर्कल ड्रॉ करिए, यस, और आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि कितने सर्कल के टेंजेंट्स हो सकते हैं. Suppose this one is the tangent, this one is the tangent, this one is the tangent, yes. So infinite circles and tangents can be draw on a circle. तो यहां पे आप इसका आंसर लिखेंगे इनफाइनाइट. ठीक है, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल के ऊपर. यस, सर्कल का साइज बढ़ाते जाइए, कितने भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. सर्कल छोटा है, आपको नजर आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 या आप 6-7 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. व्हेन हम सर्कल का साइज बढ़ाते जाएंगे उसके ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. एंड इन द सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 2 में a tangent to a circle intersect it in point. एक टेंजेंट है, ये आप एक सर्कल ले रहे हैं एंड दिस इज द टेंजेंट. तो आप खुद देख रहे हैं कि कितने पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है. यू ऑब्जर्व दैट इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट. सो इट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. Yes, a tangent to a circle intersect it at a single point. एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. A line intersecting the circle, a line intersecting the circle in 2 points. किसी सर्कल को अगर कोई लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, here this is a circle and it is a line which intersecting the circle at 2 points.
क्लियरली वी ऑब्जर्व दैट इज नोन एज सीकेंट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीकेंट। एंड थर्ड पॉइंट, द सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स, कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? स्टूडेंट देखिए, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर रखा है, और अगर हम इसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करें, यस, ओनली वी कैन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू सर्कल। यस, आप क्लियरली देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल होगा। टेंजेंट्स अभी 10.1 थ्योरम हमने की थी कि अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला देते हैं तो रेडियस के ऊपर टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो दिस वन इज आल्सो 90 एंड इधर ये भी 90 का होगा। सो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो किसी भी टेंजेंट के हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। यस, ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स। टेंजेंट्स हम बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, बट पैरेलल टेंजेंट की कंडीशन आप देख रहे हैं कि अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो या ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो इस टेंजेंट के पैरेलल सिर्फ एक टेंजेंट और हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एट मोस्ट वी कैन ड्रॉ टू पैरेलल टेंजेंट्स। यस, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल। किसी सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट हो गया, तो कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं उसमें? एक ही कॉमन पॉइंट होगा, एंड दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now student, you start question number 3. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल लीजिए आप जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। क्या दिस वन इज अ सर्कल whose radius is 5 सेंटीमीटर, meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12। एक टेंजेंट आपने लेना है। यस, देखिए ये Q पॉइंट है और इसका रेडियस आपके पास दिए रखा है। दिस वन इज द टेंजेंट और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया P। रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है स्टूडेंट। ये रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड OQ is given to you, that is 12 centimeter. OQ is 12 centimeter. So स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम 10.1 थ्योरम का यूज करेंगे बिकॉज OP इज द रेडियस एंड PQ इज द टेंजेंट, सो इट इज परपेंडिकुलर टू PQ। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे यूजिंग थ्योरम 10.1 जो अभी हमने की है, इसका यूज कर रहे हैं हम। यस, OP is perpendicular to PQ. Therefore, in right triangle, this implies angle OPQ is equal to 90 degree. अब right triangle हमें लेनी है। In right triangle OPQ, yes, हमें PQ का स्क्वायर निकालना है। OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर that is equal to OQ square. Now student, OP 5 centimeter है, so square of 5 plus PQ square is equal to square of 12. Now PQ square plus 25 is equal to 144. Next आप PQ square को यही रखिए, 25 को उधर लेके जाएंगे हम। PQ square is equal to 144 minus 25 and PQ is equal to 14 में से 5 9, 3 में से 2 1, PQ square is equal to 119 and PQ is equal to square को उधर लेके जाएंगे तो under root 119। So friend, option D is the correct answer. It hold D। ठीक है, अभी डी ऑप्शन हमारी सही है। नाउ इन द नेक्स्ट
फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए सर्कल। एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट देखिए, सर्कल ड्रॉ करिए। ड्रॉ ए सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other one is secant। सबसे पहले स्टूडेंट एक लाइन ड्रॉ करिए। ये क्या, एक लाइन ड्रॉ करिए आप। एक्स वाई मान लीजिए कोई लाइन हमने ले ली है, और यहां से इस सर्कल से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और एक आपको सीकेंट ड्रॉ करना है। तो देखिए, कभी भी हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यस, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ओ से। ओ पे कंपास रखेंगे हमारा, और एक कंपास रख के इसको एक आर्क लगा देंगे विद सेंटर ओ। ड्रॉ एन आर्क टू द लाइन एक्स वाई। एक्स वाई के ऊपर एक लाइन लगाइए। एक आर्क इसके हाफ से ज्यादा खोलिए, हाफ से ज्यादा खोल के एक आर्क हम पी पॉइंट से लगाएंगे और दूसरी हम क्यू पॉइंट से लगाएंगे। तो क्यू पॉइंट से लगाइए। सो दिस इज द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया है फ्रॉम सेंटर ओ टू द लाइन एक्स वाई। अब देखिए, हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, बट कंडीशन क्या लगाई है, वन मस्ट बी ए टेंजेंट। और टेंजेंट तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे बनेगा। यार, ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो स्टूडेंट यहां पे आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यस, 90 का एंगल बनाएंगे, 60 का, 120, एक 60 से और एक 120 से आर्क लगाएंगे। सो दिस, इसमें से जो लाइन जाएगी स्टूडेंट, आर एस। therefore आर एस इज पैरेलल टू दिस। देखिए, क्योंकि ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ऐसे ही अगर आपको एक सीकेंट ड्रॉ करना है, तो किसी भी पॉइंट, मान लीजिए हम ये बी पॉइंट में से एक सीकेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट यहां पे भी आप ऐसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यस, क्योंकि ये 90 का एंगल है, ये 90 का हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो यहां पे आपको एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री हियर। यस, एक आर्क लगाएंगे, 60 का एंगल, 120 का, और एक 60 एक 120 से, तो 90 का एंगल हो गया। यहां पे भी ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। देखिए स्टूडेंट, ये हमें यू वी एक लाइन ली विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट सी एंड डी। सी और डी पे इंटरसेक्ट करती है। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू ड्रॉ एट सीकेंट एंड टेंजेंट विच आर पैरेलल टू द लाइन एक्स वाई। तो उसके लिए सिर्फ सिंपली आपको ओ से एल्टीट्यूड डालना है। एल्टीट्यूड होने के बाद देखिए, ये 90 का एंगल हो गया है। अब हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी इसके पैरेलल, लेकिन कहां से, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए। सो हियर ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे ये लाइन हमारी पैरेलल हो गई है। ऐसे ही हमने एक सीकेंट ड्रॉ करना था, तो इसी लाइन के ऊपर हमने कोई भी पॉइंट लिया बी, और इसके ऊपर हमने एक 90 डिग्री एंगल बनाया, और उसमें से जो लाइन जाएगी दैट मस्ट बी पैरेलल टू द गिवन लाइन xy, and this one is the secant and this one is the tangent, and both are parallel to line xy. So student, today we complete exercise 10.1 and most important theorem of this chapter, that is 10.1 theorem, and in the next video we discuss the next exercise. Till then, thanks to all of you and have a nice day.